Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another public university of Italy, that is University of in Serbia. Before jumping into our application process, I would like to request you all that please subscribe my channel and like my video and don't forget to share it with your friends. Okay, so before starting my application process, first I would like to discuss some important things about this university first. So for that, we will come on to my notepad. So a University of in Serbia is a public university of Italy. That is what I told you in the start of the video. It was founded in 1998 and according to QS World University Ranking 2024, it falls under 750 to 760 position. So it comes under a top 1000 universities of the world. So what else do you need if you get admitted into a public university of Italy, and that too in top 1000 universities of the world? So you all should must apply into this university. If you talk about the minimum CGPA, so it is around a 2.5 and the acceptance rate is around 40%. So now let's start our application process. So for that we will come on to the home page of our university's website. I will also attach the link of this website in my YouTube videos description so that you don't have to search it. All you have to do is to just click on that link and the link will take you to this page. After coming onto this page, here you can see the course catalog option. So we'll click on the course catalog option. After clicking on course catalog option, we'll click on the degree programs here in under the course list. After clicking on the degree programs, here you can see they've provided us with a list of all of the programs that are offered by this university. So but our relevant programs are only those that are taught in English. Since we don't know Italian, we don't have an Italian language certificate, so we will apply only in those courses that are taught purely in English. So for that we'll filter out our course. We'll here they have given us some filters. In language section we'll select the English language and then we'll click on the search button. After clicking on the search button, it will filter out all of the programs that are taught in Italian, and they will only show us the programs that are taught only in English language. So here we have a lot of programs. For example, first one is biomedical sciences, then biotechnology, then there is computer science also. There is global entrepreneurship and economics and hospitality, mathematics and physics. So these are the courses that are taught in English. So first, if you want to check out the information and requirements of the courses, so for that you will click on your desired course. जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, आप उस कोर्स पे क्लिक करोगे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप चेक करोगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आया यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स और नॉट. सो फॉर एग्जांपल मैं जो है अप्लाई करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस में. कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए मैं जो है कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करूँगा. कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करने के बाद जो है यू विल स्क्रॉल डाउन बिलो. यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है आपके पास एडमिशन रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन है, और उससे पहले जो है यहाँ पे आपके पास मज़ीद उसके बारे में डिटेल्स है, लैंग्वेज, लोकेशन, ड्यूरेशन वगैरह. तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी कि अगर आपने जो है कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो आपके पास ये सारी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे है कि आपने ये कोर्सेज़ पढ़े हुए होने चाहिए, आपका जो है आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपने जो है वो इंटरव्यू मस्ट पास करना होगा इस कोर्स के लिए अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो. फिर यहाँ पे जो है इंग्लिश की B2 लेवल रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पे. फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इन लोगों ने फॉर इन्फॉर्मेशन भी एक सेक्शन दिया हुआ है. तो जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के आपके पास जो है वो 2 मेथड्स है. एक मेथड तो ये है कि आप जो है यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें और जो है उनको ईमेल करें. हर कोर्सेज़ के ईमेल जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं. वो आपने कैसे फाइंड करने हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है आप ये समझो. पहले जो है आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप जस्ट जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो है आप डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करो और फिर वो 10 to 20 डेज़ में आपको डिसीजन देंगे कि आपको एडमिशन होता है या नहीं होता. अगर एडमिशन नहीं होता तो वो आपका कैंसिल कर देंगे प्री इनरोलमेंट.
फिर उसके बाद जो है आप मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तब तक आप जो है किसी और यूनिवर्सिटी के लिए प्री इनरोल नहीं कर सकते, प्री इनरोल यूनिवर्स इटली की वेबसाइट से, जब तक कि आपके पास इनका डिसीजन या किसी और यूनिवर्सिटी का डिसीजन नहीं आ जाता जिसमें आप यूनिवर्स इटली से ही डायरेक्ट अप्लाई करते हो। तो इसमें जो है आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप यूनिवर्स इटली से डायरेक्ट अप्लाई ना करें, उससे पहले जो है आप इनसे कन्फर्म करवा लें कि मुझे एडमिशन मिल सकती है कि नहीं। तो उसके लिए जो है हर कोर्स के नीचे आपके पास फॉर इन्फॉर्मेशन का जो है वो सेक्शन दिया होगा। फॉर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में इन लोगों ने जो है यहाँ पे आपके पास ईमेल दिया होगा कि इस ईमेल पे जो है आप ईमेल कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या ईमेल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स में आपने जो है सीवी करनी होगी, एक पासपोर्ट करना होगा, आपने जो है अपना बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर्स के सर्टिफिकेट्स जो है, और इसके अलावा जो है आपने इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी जो है ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने एक साथ एक ही ईमेल में जो है इनको ईमेल कर देने हैं। जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो उस प्रोग्राम में आप जो है उस पर क्लिक करके ऐसे पेज पे आके उसके नीचे आपको फॉर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन नज़र आएगा हर प्रोग्राम के नीचे। उसमें जो है आपको उस प्रोग्राम के रिलेटेड जो है वो ईमेल दिया होगा, तो आपने उसके डिपार्टमेंट वालों को ही ईमेल करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और आपने उनको बताना है कि मुझे एडमिशन चाहिए। तो अगर आप एडमिशन आपको मिल सकता है तो वो आपको बता देंगे, फिर आप जो है अपनी प्री इनरोलमेंट करोगे। अगर नहीं मिल सकता तो वो भी आपको बता देंगे। तो आप जो है डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करने की बजाय जो है उनको ईमेल करें, ईमेल से उनका रिस्पॉन्स लें। अगर आपका एडमिशन जो है वो होता है तो फिर ही आप जो है प्री इनरोल करें, या फिर आप जो है डायरेक्टली भी प्री इनरोल कर सकते हो। लेकिन आप जो है उसमें फिर आप तब तक दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए प्री इनरोल नहीं कर सकते जब तक इनका डिसीजन नहीं आता एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का। अगर रिजेक्शन आती है तो फिर ही आप जो है दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए प्री इनरोल कर सकते हो। कैसे प्री इनरोल करोगे, तो उसके लिए जो है मैंने सेपरेट सी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो जो है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा आपको। उस पर जो है जाके आप वहाँ से यूनिवर्स इटली से इस यूनिवर्सिटी के लिए प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं देखूँ बाकी प्रोग्राम्स का भी अगर मैं आपको शो करूँ, बाकी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें से आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी गिवन होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ बायोमेडिकल साइंसेस पे। तो बायोमेडिकल साइंसेस पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे जब मैं नीचे आऊँगा तो सबसे पहले आपने देखना है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहली चीज़ आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है पहले देखोगे कि हमारी क्या एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स है, फिर ही आप जो है उस कोर्स में अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मुझे एक फॉर्म भी दिया है कि आप ये फॉर्म फिल करोगे। तो इसमें आप यूनिवर्स इटली पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करोगे, आप ये फॉर्म फिल के अप्लाई करोगे। फॉर्म फिल करोगे और उसके बाद जो है ये ईमेल आपको दिया है, इस ईमेल पे जो है आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है वो है ट्रांसक्रिप्ट, आपका सर्टिफिकेट, और फिर आपके पासपोर्ट और सीवी, और फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने इस ईमेल पे सेंड करने हैं। अगर आप जो है इस कोर्स जो कि है हमारा बायोमेडिकल साइंसेस का, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसका ईमेल और इसका जो है ये यहाँ पे फॉर्म इन्होंने दिया है कि ये आप फिल करोगे। अब फॉर्म में क्या है तो ये हम देखते हैं। फॉर्म पे क्लिक करके, फॉर्म पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में जो है सिंपल जस्ट कुछ भी नहीं है, नेम लिखने हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, फिर आपने यूनिवर्सिटी लिखनी है जहाँ से आपने बैचलर्स किया, फिर आपने बैचलर्स डिग्री का नाम लिखना है, फिर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के आपने कब की, फिर फाइनल मार्क्स है तो यहाँ पे आप जो है 3.5 आउट ऑफ 4 लिख लो, या परसेंटेज में अगर लिखते हो तो 90% आउट ऑफ 100 लिख लो। ऐसे आप जो है अपने मार्क्स लिखोगे। फिर कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटी में आप अपनी कंट्री लिख लोगे। फिर लैंग्वेज में जो है आप इंग्लिश लिखोगे। और फिर आपके पास नीचे जो है ये सारे कोर्सेज है जो आपने बैचलर्स में पढ़े होंगे, तभी आप जो है इस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन सारे कोर्सेज जो आपने बैचलर्स में पढ़े होंगे इन सब के मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। मार्क्स जो है आप पहले अपने मार्क्स लिखोगे, फिर स्लैश, और फिर टोटल मार्क्स लिखोगे, या फिर आप परसेंटेज में भी ऐसे स्लैश करके लिख सकते हो, और जीपीए में भी लिख सकते हो। तो वो सारे मार्क्स जो है आप 1 बाय 1 लिख के यहाँ से सबमिट करोगे। जब आप सबमिट करोगे तो आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी के लिए और इस सब्जेक्ट में। तो आप फिर रिस्पांस का वेट करोगे, और फिर जब आप अगर एक्सेप्ट होते रिजेक्ट होते उसके बाद भी फिर आप प्री इनरोल कर सकते हो। तो ये जो है इस सब्जेक्ट का इसमें अच्छा ऑप्शन आपके पास है। और इसके साथ साथ जो है आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करोगे इस ईमेल पे अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करते हो। तो ये था आपका इस कोर्स का। फिर अगर हम बाकी कोई और कोर्स देखें, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, और अब हम देखते हैं कि इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है और इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। तो मैथमेटिक्स के लिए जब आप आओगे दोबारा नीचे, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जो है यहाँ पे जस्ट रिक्वायरमेंट्स इन लोगों ने लिखी है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने जो है ये इतना जो है वो क्रेडिट आवर्स आपके मैथमेटिक्स में होने चाहिए, इतने फिजिक्स में और इतने कंप्यूटर साइंस में। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो आपका B2 या उसका इक्विवेलेंट
रेलिवेंट होना चाहिए। इसके बाद जो है फॉर इन्फॉर्मेशन पे आप आओगे तो यहाँ पे इन लोगों ने ईमेल एड्रेस दिया है, तो आप जो है सिंपल इस ईमेल एड्रेस पे अपने जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। तो इसमें जो है सिंपली आपने ईमेल एड्रेस पे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, इसमें आपने कोई फॉर्म फिल नहीं करना। तो इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारे जो है वो सब्जेक्ट्स देख लेने हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, जस्ट उसके ही जो आपके रेलिवेंट डिग्री के रेलिवेंट हो, तो फिर उसके आप अकॉर्डिंगली उनको ईमेल कर दो। या फिर अगर उनका फॉर्म वगैरह नहीं है, जस्ट ईमेल गिवन है, तो फिर आपके पास जो है यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट वहाँ से करो, फिर या फिर यहाँ पे पहले ईमेल करके इनसे कंफर्म एडमिशन लेके फिर वहाँ पे अप्लाई करो। तो ये था हमारा इस यूनिवर्सिटी का सिंपल सा शॉर्ट सा जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस। प्री इनरोलमेंट का जो है वो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, वहाँ से वो आप चेकआउट कर ले। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपका कोई और रिक्वेस्ट है, आपकी कोई डिमांड है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं जो है ज़रूर आपके लिए न्यू वीडियोज़ ऐसे बनाता रहूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।